Okay, new chapter, dividend policy. New chapter, dividend policy. Now this chapter carries forward the dividend discount model that we have been doing. It's a very small chapter, but exam mein it shows up prominently, which means there have been papers wherein 15-20 marks has come. So the benefit cost ratio is very high. We just invest separately around 3 or 4 classes and you will find that number of marks coming up. But one thing said, that this chapter has a legacy of giving ambiguous questions in which some assumptions need to be taken. Questions are not difficult, but sometimes the questions do not contain data. So the student, when he's prepared, it means that he should know that what are the past sums in which the institute has not given proper data. So you will find when I do the sums, I will do a separate category called ambiguous questions. So those 5-7 questions we will remember for the exam, that फिर से repeat आता है, so we got to straight away catch कि हाँ ठीक है ऐसा करना है. So given that background about the exam, let us talk it out. Dividend policy obviously refers to the policy of the company regarding how much dividends to pay. Should a firm pay more dividend or should a firm pay less dividend? That is the main debate in this question. You remember the ultimate outcome is the share price. We should have a dividend policy which will result in the highest possible share price, na? Given the objective of shareholders' wealth maximization. So अगर कोई पूछे what is the best dividend policy, the answer is the best dividend policy is the policy for which share price is the maximum. Now historically, let's take the example of Microsoft. Prior to the dot-com bubble in 2000 के पहले, Microsoft had never ever paid dividend. कभी भी dividend नहीं दिया था. And उसके बावजूद the stock used to trade at a price earnings multiple of around 70-80 times. तो Microsoft had never paid dividend. उसके बावजूद भी लोग उसके शेयर के लिए 70-80 times earnings price पे करते थे. So that means that people had the confidence that Microsoft जो earn कर रहा है और distribute नहीं कर रहा है, plow back कर रहा है, उस पे वो ज़्यादा return earn करने वाला है या कम थी? ज़्यादा. तो in that case अगर आप लोग का required rate of return RF plus RM minus RF into beta, if your required rate of return is 18% and Microsoft can earn 28% on its projects, so you would be happy only ना that Microsoft does not pay dividend. तुमको पैसा मिलेगा, तुम कहीं और लगाएगा 18 पे, इससे बढ़िया वही पैसा Microsoft कितने पे लगा रहा है? 28 पे. ठीक है तो such companies are heavily rewarded if they pay dividend or they don't pay dividend. Don't pay dividend. In fact, dot-com bubble के तुरंत बाद Microsoft announced a major bonus and stock split and dividend. As soon as it did, the stock price fell. The price earning ratio fell. क्योंकि इसका मतलब वो कंपनी जो आज तक डिविडेंड नहीं देता था वो डिविडेंड देना चालू कर दी है, तो उसके खुद के पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज अब उतना है कि नहीं है? नहीं है. तो वाई दैट पी रेशियो? ठीक है तो दिस एग्जांपल परहैप्स हाइलाइट्स द फैक्ट दैट अगर किसी के मन में बैठा हुआ है कि डिविडेंड ज्यादा देने से शेयर का दाम ज्यादा होता है तो ये गलत है. ओके, डिविडेंड नहीं देने से भी शेयर का दाम ज्यादा हो सकता है, प्रोवाइडेड लोगों को ये कॉन्फिडेंस रहे कि जो रिटेन्ड अर्निंग्स है दैट विल बी इन्वेस्टेड इन पॉजिटिव एनपीवी प्रोजेक्ट्स. लेट्स टेक सेकंड एग्जांपल, एन इंडियन वन. रिलायंस इंडस्ट्रीज at the time of Dhirubhai Ambani used to follow a very strict dividend policy. Strict means low dividend. It also used to invest most of its earnings into new projects. And once again, investors were very confident that Dhirubhai had the vision of finding out positive NPV capital budgeting projects. So therefore they did not care. But when Dhirubhai died, at that time, the investors were really in a fix कि whether the successors would have the vision of finding out such opportunities. क्या वो लोग भी ऐसा opportunities खोज पाएंगे? And therefore, since शक था, therefore people demanded more dividend or less dividend? More, because they did not have confidence. तो उस समय रिलायंस को अपना dividend policy change करना पड़ा. They had to start paying a liberal dividend. And once they proved a track record, no, they can also find out good projects. Then they slowly and slowly went into strict dividend. So
पूरा का पूरा जो थिंग है डिविडेंड पॉलिसी में, इट्स समवेयर सराउंड्स अराउंड इन्वेस्टर का साइकोलॉजी, द कॉन्फिडेंस whether management will be able to invest retained earnings into good projects or not. Okay, so having said this, अपने ये दोनों एग्जाम्पल जो है उससे स्टार्ट करते हैं एंड देन आई विल ओपन अप द चैप्टर. प्लीज स्टार्ट. लिख देना वार्म अप. वार्म अप में पॉइंट नंबर 1, prior to the dot-com bubble, prior to the dot-com bubble, prior to the dot-com bubble in 2000, prior to the dot-com bubble in 2000, comma, Microsoft had never paid a penny of dividend. Microsoft had never paid a penny of dividend. Microsoft had never paid a penny of dividend. Full stop. Still it used to trade. Still it used to trade at a price multiple. Still it used to trade at a price multiple of almost 100 times. Still it used to trade at a price multiple, माने P ratio बोल रहा हूँ. It used to trade at a price multiple of almost 100 times. शेयर का दाम 100 into EPS. Price multiple of 100 times. Full stop. The reason for the same is that The reason for the same investors were confident. The reason for the same is that investors were confident that Microsoft had a large number of positive NPV investment opportunities. Large number of positive NPV investment opportunities. Positive NPV investment opportunities. Positive NPV investment opportunities. Full stop. Parachange. In fact, when Microsoft announced dividend for the first time, when Microsoft announced a dividend for the first time, comma, its share price fell. As market got the signal that such growth opportunities are no longer there. Market got the signal that such growth opportunities are no longer there. Such growth opportunities are no longer there. No longer there. Full stop. Point number 2. Reliance Industries at the time of Dhirubhai Ambani. Reliance Industries at the time of Dhirubhai Ambani used to follow a strict dividend policy. Used to follow a tight dividend policy. And market rewarded the same. Used to follow a tight dividend policy and market rewarded the same. Full stop. After the death of Dhirubhai,
after the death of Dhirubhai, comma, Reliance had to move to a more liberal dividend policy. Reliance had to move to a more liberal dividend policy. Reliance had to move to a more liberal dividend policy. Full stop. Okay, so given these two warm-up sessions, now we need to cover three things in this chapter. The first thing is there a relationship between dividend policy and share price? If yes, what is the relation? If no, why not the relation? That's the prominent part of the chapter. क्या dividend policy और share price पे relation है? Because one of the models जो नाम सुना हुआ है तुम लोग का IPCC में MM model, जो कि कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर में हुआ करता था. कौन सा चैप्टर? कैपिटल स्ट्रक्चर, जहां डिस्कशन होता था एक कंपनी को ज्यादा डेट लेना चाहिए कि ज्यादा इक्विटी. वहां पे MM मॉडल बोला था इट डजंट मैटर, डेट लो या इक्विटी लो फर्क पड़ेगा नहीं. वैसे ही डिविडेंड पॉलिसी में भी MM मॉडल है जो बोलता है कि डिविडेंड ज्यादा दो या कमती दो, डिविडेंड पॉलिसी से शेयर प्राइस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. ठीक है, तो एक मॉडल तो वैसा है. बाकी जो मॉडल्स है वो लोग बोलते हैं नहीं, रियल लाइफ में जो इम्परफेक्शंस है उसके कारण डिविडेंड पॉलिसी का शेयर प्राइस पे इफेक्ट पड़ेगा. तो फिर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो ये एक प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर है. उसके बाद जाके लास्ट में अपने को चैप्टर में डिस्कस करना है डिविडेंड वर्सेस बायबैक. कंपनी के पास सरप्लस फंड है तो बायबैक भी तो कर सकता है डिविडेंड देने के बजाय. तो कब डिविडेंड देना चाहिए, कब बायबैक करना चाहिए, उसका सम्स. और एकदम लास्ट में वी विल डिस्कस रियल लाइफ में कंपनीज लोग किस तरह का डिविडेंड पॉलिसीज फॉलो करते हैं. डिविडेंड पॉलिसी इन प्रैक्टिस. तो तीन पार्ट है चैप्टर का. वन इज द थियरीज ऑन डिविडेंड पॉलिसी, दैट इज द इफेक्ट ऑफ डिविडेंड पॉलिसी ऑन शेयर प्राइस. Second part is dividend versus buyback decision, and third part is dividend policy in practice. First part ही prominent है, second और third closing remarks है. ठीक है, तो तीन पार्ट पे टॉपिक को डिवाइड कर रहे हैं. पैरा चेंज. Dividend policy refers to the firm's policy regarding dividend payout. Firm's policy regarding dividend payout. Firm's policy regarding dividend payout. Full stop. Optimum dividend policy if any. Optimum dividend policy if any. इफ एनी लिखाना पड़ा बिकॉज MM के अनुसार तो ऑप्टिमम कुछ होता ही नहीं है. तो ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी, बेस्ट डिविडेंड पॉलिसी अगर कुछ होता है तो इफ एनी refers to that policy which will result in the highest share price. That policy which will result in the highest share price. Full stop. Para change. We divide our discussion into three parts. We divide our discussion into three parts. Dash. Para change. Part 1, theories on dividend policy. Part 1, theories on dividend policy. Theories on dividend policy. Part 2, dividend versus buyback decision. Dividend versus buyback decision. Part 3, dividend policy in practice. Heading first part, theories on dividend policy.
थियरीज ऑन डिविडेंड पॉलिसी. थियरीज ऑन डिविडेंड पॉलिसी. तो थियरीज ऑन डिविडेंड पॉलिसी जो तुम लिखा है उससे एक सिंगल एरो नीचे लाके लिखना, डज डिविडेंड पॉलिसी अफेक्ट शेयर प्राइस. डज डिविडेंड पॉलिसी अफेक्ट शेयर प्राइस. ये क्वेश्चन ओपन कर रहे हैं. डज डिविडेंड पॉलिसी अफेक्ट शेयर प्राइस. क्योंकि अगर इसका आंसर है नो, तो इन दैट केस व्हाई शुड वी स्टडी डिविडेंड पॉलिसी. अगर उसका फर्क ही नहीं पड़ता है तब तो उसको स्टडी करने का जरूरत ही नहीं है. डज डिविडेंड पॉलिसी अफेक्ट शेयर प्राइस. ओके, रेज दिस क्वेश्चन प्लीज. तो उस केस में इसका दो पार्ट्स, नो, राइट साइड में यस. तो एक थियरी बोलता है कि डिविडेंड पॉलिसी का शेयर प्राइस पे कोई इफेक्ट नहीं है. अगर कोई इफेक्ट नहीं है तो डिविडेंड पॉलिसी इज रेलेवेंट और इररेलेवेंट. इररेलेवेंट, ठीक है. नो, तो नो के अंदर लिख दो एमएम्स डिविडेंड इररेलेवेंस इररेलेवेंस थ्योरम. एमएम्स डिविडेंड इररेलेवेंस थ्योरम, उसको थ्योरम बोलते हैं. एमएम्स डिविडेंड इररेलेवेंस थ्योरम. एमएम्स डिविडेंड इररेलेवेंस थ्योरम. और राइट साइड में जहां पे यस है उसमें व्हाट इज द इफेक्ट. व्हाट इज द इफेक्ट, क्या इफेक्ट है डिविडेंड पॉलिसी का, व्हाट इज द इफेक्ट. तो व्हाट इज द इफेक्ट में लिसन, एक पर्टिकुलर थियरी है जो ये बोलता है डिविडेंड ज्यादा देंगे तो शेयर का दाम ज्यादा होगा, कम देंगे तो शेयर का दाम कमती होगा. दैट्स वन थियरी. बाकी जो दोनों थियरीज है वो बोलता है वेदर डिविडेंड से शेयर का दाम ज्यादा होगा या कम होगा दैट डिपेंड्स अपॉन कंपनी खुद कितना अर्न कर सकता है. तो इसका जवाब तो तुम लोग को पता है. इफ द कंपनी कैन अर्न मोर ऑन रिटेन्ड अर्निंग्स एज कंपेयर टू व्हाट द शेयर होल्डर्स रिक्वायर. इफ द कंपनी कैन अर्न मोर, माइक्रोसॉफ्ट, एज कंपेयर टू व्हाट शेयर होल्डर्स रिक्वायर, तब तो डिविडेंड ज्यादा होना चाहिए कि कम. कम. एंड इफ द कंपनी कैन अर्न लेस देन व्हाट द शेयर होल्डर्स रिक्वायर, तो डिविडेंड शुड बी व्हाट, मोर. यही तो लॉजिकल है. तो ये जो व्हाट इज द इफेक्ट वाला है उस पर एक पॉलिसी बोलता है हायर डिविडेंड हायर शेयर प्राइस. ठीक है, दैट्स अ बिट इलॉजिकल. एंड द अदर थियरी कंपेयर्स द रिटर्न विद द रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड बाय शेयर होल्डर्स. तो व्हाट इज द इफेक्ट में, व्हाट इज द इफेक्ट में दो पार्ट. व्हाट इज द इफेक्ट में दो पार्ट. एक हो गया पॉजिटिव इफेक्ट. पॉजिटिव इफेक्ट, इस थियरी का नाम है ट्रेडिशनल पोजीशन. ट्रेडिशनल पोजीशन, ज्यादा डिविडेंड देंगे तो शेयर प्राइस ज्यादा होगा. ट्रेडिशनल पोजीशन, पॉजिटिव इफेक्ट. यहां पे डिपेंड्स अपॉन ROE versus RE. You know both of them. ROE versus RE. Which is an accounting measure? ROE. But if the feel behind ROE is that कंपनी का जो इक्विटी है उस पर कंपनी क्या कमा रहा है, what is it earning. और RE मतलब आप लोग को क्या चाहिए. For a good company, ROE should be more than RE ना. ठीक है, तो तब जाके वो कमती डिविडेंड दे रहा है तो भी कोई बात नहीं है. तो डिपेंड्स अपॉन ROE वर्सेस RE. इसमें दो पॉलिसी होगा, बाद में करेंगे अपने. इधर नीचे लिख लो. एक है वॉल्टर मॉडल, वॉल्टर मॉडल, और दूसरा है GORDON, गॉर्डन मॉडल. वॉल्टर मॉडल, गॉर्डन मॉडल. तो एक बार इस चार्ट को बना के अपने सारा का सारा थियरीज जो है वो बोर्ड पे लिखे हैं. तो टोटल में कितना थियरी स्टडी करना है, 4. एक था यहां पे कौन सा मॉडल, MM. ठीक है, मॉडिकुलर मिलर अप्रोच.
ये अप्रोच है ट्रेडिशनल पोजीशन, ज्यादा डिविडेंड देंगे तो शेयर का दाम क्या होगा, ज्यादा। और फिर है वॉल्टर एंड गॉर्डन अप्रोच, डिपेंड करता है आरओई वर्सेस व्हाट, आरई। ठीक है, इंडिविजुअल इनको कवर करना है, बट एक बार चार्ट में कवर हो गया। जो लेवल का एग्जाम है, ऑब्वियसली एग्जाम में राइट शॉर्ट नोट ऑन वॉल्टर मॉडल नहीं आता है, तो प्लीज अंडरस्टैंड, ऐसे भी वॉल्टर मॉडल के अंदर में जो लैंग्वेज दिखाऊंगा वो काम का नहीं है, सम्स काम का है, उसका बेसिक पिकअप काम का है। ठीक है, तो ये चारों का चारों अपने को कवर करना है। सबसे ज्यादा एग्जाम में ये वॉल्टर और गॉर्डन जो है वो टेस्टेबल होते हैं। इनफैक्ट गॉर्डन तो D1 by RE minus G है, तो D1 by RE minus G का अपने मिल के करीबन 30-40 सम्स तो आज तक किए ही होंगे, और अभी भी खत्म नहीं हुआ, इसके अंदर और है। ठीक है, और वॉल्टर मॉडल नया है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। तो पहला लिखना, नंबर ए ट्रेडिशनल पोजीशन। नंबर ए ट्रेडिशनल पोजीशन, ट्रेडिशनल पोजीशन, ट्रेडिशनल पोजीशन। It's very short to the point, has not been tested ever in the exam, but still we should have a look at the equation and the logic and then move ahead. Traditional position बोलता है कि investors believe in the maxim a bird in hand is better than two in the bush. अगर कंपनी 1 रुपया का डिविडेंड तुमको दिया तो तुम्हारे हाथ में आ गया ना, और अगर कंपनी वादा दे रहा है, वादा कि ये 1 रुपया का हम 2 रुपया बदल के तेरे को बाद में देंगे, तो दैट इज अनसर्टन, तो तुमको उस पर शक है। Therefore, which one do you like, 1 rupee का डिविडेंड और द पोटेंशियल 2 rupees का कैपिटल गेन? 1 rupee का डिविडेंड, बिकॉज डिविडेंड इज व्हाट, सर्टन। बेसिकली नाम क्या है, ट्रेडिशनल मॉडल। तो बहुत पहले से, इफ वी रन 2 decades 3 decades अगो, उस समय द लेवल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस वॉज वेरी बैड, विच मीन्स दैट अभी भी बैड है, बट कुछ तो इंप्रूवमेंट हुआ एटलीस्ट लिप सर्विस वाइज। पहले इन्वेस्टर्स लोग को शक लगता था कि कंपनी जब अर्न कर लिया तो हमारा पैसा है, क्यों नहीं दे रहे हमको। ठीक है, उस पैसा को फालतू में कहीं लगा देगा, डुबा देगा। ठीक है, तो लोगों को ये लगता था भाई हम लोग का पैसा दे दो, उसके बाद तुमको जो प्रोजेक्ट करना है नया पैसा रेज करके करते रहो। और द मेंटालिटी वाज पीपल वे कॉन्फिडेंट ऑफ द मैनेजमेंट और नॉट कॉन्फिडेंट, नॉट कॉन्फिडेंट। एंड इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट कि मैं तुम्हारा पैसा ठीक से लगाऊंगा, और तुम्हारे लिए तो यही बेटर रहेगा ना कि डिविडेंड पे आउट रेशियो शुड बी 0 और 50 और 100%। 100% EPS इक्वल टू DPS। उसके बाद फर्म को प्रोजेक्ट करना है, नया पैसा बोरो करके करेगा। ठीक है, तो दिस पॉलिसी इज हायर डिविडेंड हायर शेयर प्राइस, हायर डिविडेंड हायर शेयर प्राइस, ट्रेडिशनल मॉडल। इसमें जो इक्वेशन है प्राइस का, वो इक्वेशन क्या है सुनना। अपना हमेशा हैबिट होता है ये करने का कि प्राइस इक्वल टू सर्टेन टाइम्स EPS। लुक एट दिस प्लीज, I have written price equal to multiple of EPS. This is not something new for you. बोलने का मतलब है suppose M is equal to 8 times, तो बोल रहे हैं price equal to 8 times EPS. What is M? P ratio. What is M? P ratio. For a very good firm जिसका high growth rate है, strong brand है, उसका multiple क्या होता है? High 20, 30, 40 times. फॉर अ बैड कंपनी जिसके ऊपर शक है कि वो ग्रो करेगा नहीं करेगा, क्वालिटी ऑफ अकाउंटिंग बढ़िया नहीं है, उसका मल्टीपल क्या होता है? लो। तो आज तक अपने जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो ये, प्राइस इक्वल टू सर्टेन टाइम्स EPS। काश ये समझो, मल्टीपल माने P रेशियो टाइम्स EPS। ट्रेडिशनल मॉडल बोल रहा है वी बिलीव इन दिस फॉर्मूला, हाउएवर EPS का 2 पार्ट है, एक है DPS और एक है, लेट मी कॉल इट RPS, रिटेन्ड अर्निंग पर शेयर। EPS को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए, एक तो डिविडेंड पर शेयर और एक रिटेन्ड अर्निंग पर शेयर। ओके विथ यू ऑल? जैसे EPS 20 रुपया है तो डिविडेंड उसमें से 12 रुपया और रिटेन्ड 8 रुपया। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल मॉडल क्या लोग डिविडेंड को और रिटेन्ड अर्निंग को बराबर इंपॉर्टेंस देते हैं? अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल मॉडल क्या लोग बराबर इंपॉर्टेंस देते हैं? नहीं तो फिर किसको ज्यादा लाइक करते हैं? डिविडेंड। लोग डिविडेंड को ज्यादा लाइक करते हैं, रिटेन्ड अर्निंग को ज्यादा लाइक नहीं करते, बिकॉज रिटेन्ड अर्निंग जो इन्वेस्ट करेगा पता नहीं उस पैसा डूब जाएगा। इसलिए अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल मॉडल ये वाला जो पार्ट है DPS, सॉरी ये वाला जो पार्ट है DPS, उसका मल्टीपल क्या होगा? ज्यादा। DPS का जो मल्टीपल है वो ज्यादा होगा और रिटेन्ड अर्निंग का मल्टीपल क्या होगा? कम। यानी कि गलत होगा ये बोलना कि प्राइस इक्वल टू 14 टाइम्स EPS।
14 टाइम्स ईपीएस करने से तो डिविडेंड वाला पार्ट भी 14 से मल्टीप्लाई हो गया, रिटेन्ड अर्निंग वाला पार्ट भी 14 से। वो बोलता नहीं, डिविडेंड वाला पार्ट ज्यादा से मल्टीप्लाई होगा, रिटेन्ड अर्निंग वाला पार्ट कम से। यानी जो कंपनी डिविडेंड ज्यादा देगा उसका शेयर का दाम क्या होगा, ज्यादा। ठीक है। तो इन्होंने यूके में, यूएस में कोई स्टडी किया होगा और उससे इंपेरिकली पाया, इंपेरिकल जो चीज, व्हेन वी से इंपेरिकल इट मींस दे एक्चुअली फाउंड दैट हैपनिंग, इट वाज नॉट प्रूव्ड बाय एनी मैथ्स का फॉर्मूला। दे फाउंड दैट डिविडेंड्स का 4 गुना इफेक्ट है एज कंपेयर टू रिटेन्ड अर्निंग का ऑन शेयर प्राइस। तो 4 गुना इफेक्ट जो है ये वो लोग स्टडी करके पाए हैं कि डिविडेंड्स का 4 टाइम्स इफेक्ट होता है एज कंपेयर टू किसका, रिटेन्ड अर्निंग। विच मीन्स इफ आई टेल यू कि रिटेन्ड अर्निंग का मल्टीपल 5 है, क्या है 5, तो डिविडेंड का मल्टीपल क्या होगा 20। यानी कि मन से लिखा है फिगर्स, तो तुम इक्वेशन सुनना, प्राइस इक्वल टू 20 टाइम्स डिविडेंड प्लस 5 टाइम्स रिटेन्ड अर्निंग। प्राइस इक्वल टू 20 टाइम्स डिविडेंड प्लस 5 टाइम्स रिटेन्ड अर्निंग। कोई और घटिया कंपनी है, उस कंपनी के लिए रिटेन्ड अर्निंग का मल्टीपल 3 टाइम्स है, तो डिविडेंड का मल्टीपल क्या है 12। यानी प्राइस इक्वल टू 12 टाइम्स डिविडेंड प्लस 3 टाइम्स व्हाट, रिटेन्ड अर्निंग। लुक एट द रेशियो, 12/3 4, 20/5 4। आई होप लास्ट में बाद में जाके डाउट नहीं है कि सर 4 कहां से आया। मैं बोल रहा हूं 4 कोई फॉर्मूला से नहीं आया, उन लोग के रिसर्च से 4 आया है। दे हैव फाउंड दैट लोग 4 गुना ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं किसको, डिविडेंड को, एज कंपेयर टू रिटेन्ड अर्निंग। तो इनका जो टेक्स्ट बुक में फॉर्मूला लिखा हुआ है, जिसको मैं नंबर से समझाने का कोशिश कर रहा था, टेक्स्ट बुक में ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, देखो, प्राइस इक्वल टू एम इंटू डी प्लस ई बाई 3। This is the formula given in the textbook. Price equal to M into D plus E by 3. सब चीज का फुल फॉर्म समझ में आ रहा होगा। D is what? Dividend per share. E is what? Earning per share. बाहर में जो M है multiplier, depending upon the fundamentals of the company, बढ़िया कंपनी का हाई, घटिया कंपनी का लो। ठीक है। तो अगर इस फॉर्मूला में अपने ब्रेक करें P equal to M into D plus, how can we break E? D plus R, D plus R, I hope it is okay. EPS को तोड़ा है, उसके बाद जाके थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो M इंटू 4D/3 प्लस R/3। देखो, दिस रिजल्ट इज ओके विथ यू। ऐड किया 4D/3 प्लस R/3। तो अब तुम लोग देखो डिविडेंड क्या चीज से मल्टीप्लाई हुआ है, 4M/3। किसे, 4M/3। और रिटेन्ड अर्निंग क्या चीज से मल्टीप्लाई हुआ है, M/3। जैसे M अगर 15 है तो 15 है तो ये 15/3, 5 टाइम्स रिटेन्ड अर्निंग। बट 15 इंटू 4/3 कितना, 20। वो जो 4 का इफेक्ट आ गया ना, तो प्राइस इज इक्वल टू M इंटू 4D/3 प्लस R/3। दैट गोज टू शो डिविडेंड हैज 4 टाइम्स द इफेक्ट एज कंपेयर टू व्हाट, रिटेन्ड अर्निंग ऑन शेयर प्राइस। ठीक है। तो अगर कोई और मॉडल चालू होता और वो मानता डिविडेंड का 6 टाइम्स इफेक्ट होता है, क्या इफेक्ट, 6 टाइम्स, तो यहां पे क्या पुट करता, 5। यहां 5 पुट करते तो इफेक्ट क्या आता, 6। यहां पे 8 पुट करते इफेक्ट क्या आता, 9। तो प्लीज ये डाउट नहीं हो कि सर ये बाई 3 कहां से आया, उन लोगों को 4 टाइम्स दिखाना था इसलिए वहां पे बाई 3 लिए। तो दिस फॉर्मूला डजंट हैव अ मैथ्स डेरिवेशन। ठीक है। तो दिस इज एम्पेरिकली प्रूवन फॉर्मूला। ठीक है। तो प्राइस इक्वल टू M इंटू डी प्लस ई बाई 3। M कंपनी के फंडामेंटल्स पे डिपेंडेंट है, डिविडेंड पॉलिसी पे डिपेंडेंट नहीं है। बढ़िया कंपनी का M ज्यादा, घटिया कंपनी का M कम। M एग्जाम में दिया हुआ रहेगा। ठीक है। तो दैट इज ट्रेडिशनल पोजीशन। अ बर्ड इन हैंड इज बेटर देन 2 इन द बुश। व्हाट इज द बेस्ट डिविडेंड पे आउट रेशियो, 100% फुल डिविडेंड। हायर द डिविडेंड, हायर द शेयर प्राइस। ठीक है। तो डू वी एग्री विद इट, नो, बट इट्स अ क्वेश्चन ऑफ जस्ट फॉलोइंग व्हाट दे आर सेइंग। ठीक है। तो लिखो प्लीज। This model is based on the proverb. This model is based on the proverb dash, a bird in hand is better than, a bird in hand is better than 2 in the bush. A bird in hand is better than 2 in the bush.
open and close inverted comma. A bird in hand is better than two in the bush. तो 1 रुपया डिविडेंड मिले बढ़िया है, क्या पता कंपनी रिटेन अर्निंग 1 का 2 कर पाएगा क्या. A bird in hand is better than two in the bush. Full stop. This means that people like dividends as they are certain. People like dividends as they are certain. People like dividend as they are certain. People like dividend as they are certain. As compared to the capital gains which will arise from retained earning. As compared to the capital gains which will arise from retained earning. As compared to the capital gains which will arise from retained earning. As compared to the capital gains which will arise from retained earning. Dash clearly uncertain. Dash clearly uncertain. ठीक है, लैंग्वेज था. As compared to the capital gain which will arise from retained earning. Dash clearly uncertain. Full stop. Hence, the optimum dividend payout ratio is 100%. Hence, the optimum dividend payout ratio is 100%. Optimum dividend payout ratio is 100%. Full stop. Para change. The pricing equation is given by. The pricing equation is given by. The pricing equation is given by. बोर्ड पे जो है P इक्वल टू M ब्रैकेट D प्लस E बाई 3. P इक्वल टू M ब्रैकेट D प्लस E बाई 3. बाई 3 केवल E के नीचे है, D अलग है. D प्लस E बाई 3. फुल फॉर्म लिख दो. वे D इक्वल टू DPS, E इक्वल टू EPS. Okay, D is DPS, E is EPS. M equal to multiplier. M equal to multiplier. Bracket में like P ratio. M equal to multiplier. Bracket में like P ratio. Like P ratio. Bracket close. Continued. Which depends upon. M है multiplier. Bracket में P ratio. Bracket close. फिर language continued. Which depends upon the firm's fundamentals. Which depends upon the firm's fundamentals. Which depends upon the firm's fundamentals. Depends upon the firm's fundamentals. Para change. If we analyze this formula, comma, we have. If we analyze this formula, comma, we have dash. Next line. ये स्टेप और ये स्टेप लिखना है. ये वाला स्टेप P इक्वल टू M ब्रैकेट D प्लस E के बदले D प्लस R बाई 3. वो जो E था उसके बदले डिविडेंड प्लस रिटेन्ड अर्निंग बाई 3. लास्ट स्टेप P इक्वल टू M ब्रैकेट 4D बाई 3 प्लस R बाई 3. ब्रैकेट 4D बाई 3 प्लस R बाई 3. Thus, if M equal to 15, by chance M 15 है, then P equal to 20D plus 5R. यही तो आया. M को 15 पुट करेंगे तो आ रहा है प्राइस इक्वल टू 20 टाइम्स डिविडेंड प्लस 5 टाइम्स रिटेन्ड अर्निंग. ठीक है. This goes to show that dividends have 4 times the effect on share price. Dividends have 4 times the effect on share price. Dividends have 4 times the effect on share price as compared to retained earnings.
Dividends have 4 times the effect on share price as compared to retained earnings. Dividends have 4 times the effect on share price as compared to retained earnings. As compared to retained earnings. Para change example. एग्जाम्पल है एक्स लिमिटेड पेड डिविडेंड ऑफ 6 which represents a payout ratio of 60%, which represents a payout ratio of 60% and a dividend yield of 10%, which represents a payout ratio of 60% and a dividend yield of 10%. Full stop. Question number 1. Compute the firm's multiplier. Compute the firm's multiplier. Question number 2. What would have been the share price? What would have been the share price if the firm followed optimum dividend policy? If the firm followed optimum dividend policy as per traditional position. If the firm followed optimum dividend policy as per the traditional position. ठीक है, प्लीज ट्राई. छोटा सा फॉर्मूला है तो इस पे कुछ टीचिंग का इन्वॉल्व नहीं है. ये रहा फॉर्मूला, आपको इस पे पुट करके फर्स्ट पार्ट में एम निकालना है. द टॉपिक इज इजी, द चैप्टर इज इजी, तो अंडरस्टैंड दैट मेंटालिटी. यू डोंट हैव टू ओवर स्ट्रेस योर सेल्फ. सिंपल थिंकिंग, स्ट्रेट अवे सॉल्यूशन. ठीक है, यही वाला फॉर्मूला यूज होगा. तुम लोग को इससे एम निकालना है. क्वेश्चन में डीपीएस मैंने बता दिए और ईपीएस और प्राइस का हिंट दे दिए. क्वेश्चन में डीपीएस तो लिखा ही दिए और अर्निंग पर शेयर और प्राइस अगर गौर से रीडिंग करोगे तो कुड बी आर प्रेजेंट ओवर देयर लैंग्वेज के अंदर. ईपीएस तो सबको समझ में आ गया होगा. क्या ईपीएस है? 10. बिकॉज 6 रुपया जो डिविडेंड है, पे आउट रेशियो 60% है. तो पे आउट रेशियो क्या होता है? अर्निंग का 60% डिविडेंड है. तो 6 रुपया 60% है तो अर्निंग क्या है? 10. ठीक है ना. वैसे ही जो डिविडेंड यील्ड होता है प्राइस का. यील्ड किसका होता है? प्राइस का. यानी प्राइस का 10% डिविडेंड है. प्राइस डिविडेंड यील्ड इज डी बाई पी. डिविडेंड यील्ड इज डी बाई पी. प्राइस का 10% डिविडेंड है तो 6 रुपया 10% है तो प्राइस क्या है? 60. हो गया सम. प्राइस 60 है, अर्निंग 10 है और डिविडेंड 6 है. पुट करके आपको एम निकालना है. यानी जो बेसिक टर्म्स होते हैं अकाउंट्स में नॉर्मल, डिविडेंड पे आउट, डिविडेंड बाय ईपीएस, डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड बाय प्राइस, उनका मतलब कहीं पे भी काम आ सकता है कोई भी क्वेश्चन में. प्रेजेंटेशन में कोई बात ही नहीं है. कोई अगर रुका हुआ है कि सर डिक्टेट करेंगे बढ़िया से लैंग्वेज में तब कॉपी करेंगे तो गलत कर रहे हैं.
इंस्टीट्यूट कोई लैंग्वेज फॉलो नहीं करता है, ऑल्दो अपने क्लास पे लैंग्वेज वाइज देखते हैं. आपका कंटेंट करेक्ट है, दे विल गिव यू फुल मार्क्स. तो प्लीज मूव अहेड. मैंने वर्बली बता भी दिया है, अब तो कोई रीजन ही नहीं है रुकने का. ईपीएस जो है दैट इज 6/0.6, 10 रुपीज. EPS is 6/0.6, 10 rupees, and price is 6/0.1, 60 rupees. EPS जो है that is 6/0.6, 10 rupees, price is 6/0.1, that is 60 rupees. Then you should put the formula. And formula में आपको सब कुछ पता है M को छोड़ के. So you got to find out M. यानी 60 equal to M into 6 plus 10/3. तो 60 equal to M into 28/3. So M equal to what? Answer please. 6.43 times. Multiplier is 6.43 times. That's the answer. ठीक है? तो आगे से ध्यान रखना. वैसे पता ही था तुम लोग को डिविडेंड पे आउट मतलब डिविडेंड एज अ परसेंटेज ऑफ अर्निंग. हो सकता है डिविडेंड यील्ड क्लियर नहीं था. यील्ड हमेशा प्राइस का होता है. जैसे वाईटीएम में यील्ड किसका? प्राइस का. करंट यील्ड प्राइस का. ठीक है. और डिविडेंड रेट किसका होता है? फेस वैल्यू. डिविडेंड में 3 वर्ड्स होता है, पे आउट, यील्ड, रेट. पे आउट अर्निंग्स का, यील्ड प्राइस का, रेट फेस वैल्यू का. फर्स्ट पार्ट हो गया. ठीक है. फर्स्ट पार्ट इज ओवर. सेकेंड पार्ट का क्वेश्चन रीडिंग कर लो. वो पूछ रहा है शेयर का दाम क्या होता, 60 नहीं, क्या होता अगर फर्म ट्रेडिशनल पोजीशन का बात मान लिया होता. ट्रेडिशनल पोजीशन क्या एडवाइस किया है? व्हाट पे आउट? 100%. अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल पोजीशन पे आउट शुड बी 100%. तो तुमको फॉर्मूला में डिविडेंड को 10 लेना है. क्या लेना है? 10. एम निकाल ही लिया, प्राइस निकालना है. देखो आंसर सेकेंड पार्ट का. एज पर ट्रेडिशनल पोजीशन, as per traditional position, as per traditional position, optimum payout ratio equal to 100%. Optimum payout ratio equal to 100%. ठीक है. बिकॉज लोगों को डिविडेंड अच्छा लगता है, पूरा डिविडेंड दीजिए. जो ईपीएस है वही डीपीएस. 100%. दैट इज डी इक्वल टू ई इक्वल टू 10. DPS equal to EPS equal to 10. Therefore, P equal to M into D plus E/3. Therefore, P equal to 6 point क्या था? 43 into 10 plus 10/3. Answer 85.7. तो ट्रेडिशनल पोजीशन बोलते हैं अगर मेरा बात मानता तो शेयर का दाम 60 के बजाय 85.7 होता. ठीक है. अगर वो पूरा 10 का 10 डिविडेंड देता तो 85.7 वुड हैव बीन द शेयर प्राइस. और एक एग्जाम्पल. एग्जाम्पल है the stock is presently trading at 800. Stock is presently trading at 800 with a dividend yield of 20%. With a dividend yield of 20% and a earnings yield of dividend yield of 20% and earnings yield of 50%. Dividend yield of 20% and earnings yield of 50%. Full stop. Question number 1. Calculate multiplier. Question number 1. Calculate multiplier. Question number 2. Calculate the range of share price. Calculate the range of share price. Calculate the range of share price. Do it please, first part.
मॉडल का नाम लिख देना, रेंज ऑफ शेयर प्राइस एज पर ट्रेडिशनल पोजीशन, बिकॉज अपने तो नोट्स में कर रहे हैं तो मैं लिखवा रहा नहीं, एग्जाम में तो मॉडल लिखना ही पड़ेगा उसको. रेंज ऑफ शेयर प्राइस एज पर ट्रेडिशनल पोजीशन. ओके, डू द सम फर्स्ट पार्ट. फर्स्ट पार्ट इस बार तो अटकने का बात ही नहीं है. 800 रुपया शेयर का दाम है. मैंने डिविडेंड यील्ड और अर्निंग यील्ड लिखा है. यील्ड का मतलब होता है प्राइस का परसेंटेज. तो 800 का 20% कितना? 160. 160 इज डी डिविडेंड. और 800 का 50% कितना? 400. 400 इज व्हाट? ईपीएस. तो 160 आपको डी पुट करने हैं और 400 आपको ई पुट करने हैं. 160 को डी पुट करना है और 400 को ई पुट करना है. तो प्राइस इक्वल टू एम इंटू डी प्लस ई बाई 3. 800 इक्वल टू एम इंटू 160 प्लस 400 बाई 3. एम का आंसर बताओ. एम इक्वल टू 2.73 टाइम्स. ऑल्दो अपने को मतलब नहीं है, फिर भी 2.73 इज अ वेरी लो मल्टीपल. इट्स नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी. ठीक है, तो अपने को मतलब नहीं, बट फिर भी बाय द हिंट केवल एक कंपनी 2.73 टाइम्स कमांड कर रहा है तो एक कंपनी का फंडामेंटल्स वीक है. ठीक है, ये बहुत बढ़िया कंपनी नहीं है, तभी तो लोग केवल 2.5 गुना 3 गुना इस कंपनी के लिए पे कर रहे हैं. ठीक है. सेकेंड पार्ट में रेंज निकालना है. इफ यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड रेंज, रेंज मीन्स मिनिमम एंड मैक्सिमम. कोई चीज का रेंज मतलब ये तो होता है कि उस लोएस्ट क्या हाईएस्ट क्या. तो लोएस्ट शेयर प्राइस तब होगा जब वर्स्ट डिविडेंड पॉलिसी फॉलो करेंगे. लोएस्ट शेयर प्राइस तब होगा जब वर्स्ट डिविडेंड पॉलिसी ट्रेडिशनल के अनुसार कौन सा है? 0. डिविडेंड को 0 लेके प्राइस निकालना है, वो लोएस्ट. और हाईएस्ट तब होगा जब बेस्ट डिविडेंड पॉलिसी, डिविडेंड इक्वल टू 100%, मतलब 400 रुपया. लिख दो. स्टेप 1, लोएस्ट शेयर प्राइस विल करस्पॉन्ड टू D equal to 0. Lowest share price will correspond to D equal to 0. D equal to 0. Therefore, P equal to क्या आया था अभी? 2.73 ब्रैकेट 0 प्लस 400 बाई 3. प्राइस इक्वल टू 2.73 ब्रैकेट 0 प्लस 400 बाई 3. आंसर 364. तो शेयर का दाम 364 होता 800 के बदले, अगर कंपनी इतना बर्बादी करता तो. स्टेप 2, हाईएस्ट शेयर प्राइस. हाईएस्ट शेयर प्राइस करस्पॉन्ड्स टू D equal to E equal to 400. Highest share price corresponds to D equal to E equal to 400. Therefore, price equal to 2.73 bracket 400 plus 400 divide by 3 equal to what? 1456. शेयर का दाम होता 1456. ठीक है.
तो रेंज हो गया वहां से वहां, ठीक है। हेंस द रेंज इज ब्रैकेट, फर्स्ट वाला क्या था 364,1456, ये रेंज हो गया लोएस्ट हाईएस्ट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर बी, आई हैव ऑलरेडी सेड ट्रेडिशनल पोजीशन कभी जिंदगी में आया हुआ नहीं है और ऐसा कोई ग्रेट भी नहीं था, ठीक है। तो therefore we did not leave it कि बाई चांस आ जाए, छोटा सा इक्वेशन है, why do we leave it, ठीक है ना। और दो एग्जांपल्स किए। पॉइंट नंबर बी अपना ए बी चल रहा था कि 1 2 ए बी चल रहा था ना, ठीक है। पॉइंट नंबर बी है वॉल्टर मॉडल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाई फ्रीक्वेंसी वॉल्टर मॉडल। तो बहुत सारा सम्स वॉल्टर मॉडल का एग्जाम में आया हुआ है। वॉल्टर मॉडल, now Walter model is based on two assumptions. Listen to the assumption. The first assumption is that there is only one source of finance, that is retained earning. What is source of finance? Retained earning. That's a very strong assumption. इसका मतलब ये हो गया, अगर फर्म को कोई प्रोजेक्ट करना है, प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है, वो पैसा बॉन्ड इश्यू करके नहीं आ सकता है, लोन नहीं ले सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकते हैं, इक्विटी शेयर इशू नहीं कर सकते हैं, वो पैसा अपने जो कमाए हैं ना अर्निंग्स, उसी में से यूज कर सकते हैं। रिटेन्ड अर्निंग इज द ओनली सोर्स ऑफ फाइनेंस। ऐसा थोड़ी होता रियल लाइफ में, पर ये मान रहे हैं कि रिटेन्ड अर्निंग इज द ओनली सोर्स ऑफ फाइनेंस। मतलब अगर कंपनी ने डिविडेंड दिया तो उस केस में प्रोजेक्ट कर पाएगा क्या? नहीं। जो तुम अर्न किया, अगर तुम डिविडेंड दे देता है तो आपको प्रोजेक्ट छोड़ना पड़ेगा। रिटेन्ड अर्निंग इज द ओनली सोर्स ऑफ फाइनेंस, वेरी स्ट्रॉन्ग असम्पशन, ठीक है। और एक चीज बता दे प्लीज, व्हेन वी स्टडी दिस चैप्टर, कुछ लोगों का वैसा डाउट चालू हो जाता है कि सर इट इज सो इलॉजिकल। लॉजिकल इलॉजिकल का डिस्कशन नहीं चल रहा है, सिलेबस का डिस्कशन चल रहा है। ट्रेडिशनल पोजीशन क्या बोला, वो ये बोला, यू डोंट अग्री विद इट, फेयर इनफ, दैट्स ओके, ठीक है। वी आर डिस्कसिंग व्हाट हैव द मॉडल सेड, तो डू नॉट ट्राई टू एवरी टाइम फोकस ऑन इज इट कंसिस्टेंट विद रियल लाइफ और नॉट, ठीक है। तो मैं बोल रहा था वॉल्टर मॉडल में असम्पशन है रिटेन्ड अर्निंग इज द ओनली सोर्स ऑफ फाइनेंस। दूसरा असम्पशन है द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, द रिटर्न दैट वी विल अर्न ऑन प्रोजेक्ट, जो कि कैबज में बोलते हैं IRR, कैबज में बोलते हैं IRR, ऐसे बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। और सिंस मैं डेट मान रहा नहीं हूं, दैट इज द रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी। तो ये लोग ये वर्ड्स इंटरचेंजेबल यूज करते हैं। कोई कोई सब में बोलेगा IRR, कोई कोई सब में बोलेगा ROI, कोई कोई सब में बोलेगा ROE। वैसे तो टेक्निकली ये सब डिफरेंट है, बट फॉर द पर्पस ऑफ दिस मॉडल तीनों का मतलब क्या? सेम। कोई भी लैंग्वेज जिससे समझ में आए प्रोजेक्ट का रिटर्न का बात कर रहा है, वो रिटर्न को रिप्रेजेंट कर रहे हैं R से। दे आर अज्यूमिंग R इज कांस्टेंट, R इज कांस्टेंट एंड नोन। दूसरा, द रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड बाय शेयर होल्डर्स, रिक्वायर्ड बाय शेयर होल्डर्स, उसका नोटेशन क्या है अपना? RE नहीं, ROE नहीं, ROE तो R है। रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड बाय शेयर होल्डर्स इज व्हाट? RE। आई एम टॉकिंग अबाउट RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा। इस RE को ये लोग RE बोला है, कभी कॉस्ट ऑफ इक्विटी बोला है, कभी कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोला है। कारण कि अगर डेट है ही नहीं तो KC और KE क्या सेम, और फ्लोटेशन कॉस्ट है ही नहीं तो KE इक्वल टू व्हाट? RE। तो मतलब वर्ड्स को पिकअप ठीक से करना पड़ेगा। कोई भी लैंग्वेज जो ये दिखाता है कि आप लोग को क्या रिटर्न चाहिए, वो RE है। कोई भी लैंग्वेज जो ये दिखाता है कि क्या कमाने वाले हैं, वो क्या है? R। बहुत सारे वर्ड्स यूज्ड है, ठीक है। तो वन हैज टू बी ओपन टुवर्ड्स डिफरेंट वर्ड्स यूज्ड फॉर द सेम टर्म। दे आर अज्यूमिंग दैट R एंड RE आर नोन एंड कांस्टेंट। व्हाट आर दे? कांस्टेंट, हर साल चेंज नहीं होगा। उस केस में कंक्लूजन क्या है वो तुम लोग सबको पता है। कंक्लूजन का 3 आंसर्स होगा जो तुम दोगे। तीनों आंसर्स पहले सुन लो। या तो तुम लोग बोलने वाले हो कि सर डिविडेंड नहीं देना चाहिए, 0। या तुम लोग बोलने वाले सर बेस्ट होगा डिविडेंड 100% देना चाहिए। और ये बोलने वाले हो सर डिविडेंड दे या नहीं दे, ज्यादा दे कमती दे, फर्क नहीं पड़ता है। तो 3 जवाब तुमसे मैं मांगूंगा। आई विल रेज अ क्वेश्चन, यू विल गिव मी द आंसर्स, वेदर डिविडेंड शुड बी 0 और वेदर डिविडेंड शुड बी 100% और इट डजंट मैटर, ठीक है। 3 में से एक जवाब दोगे। पहला केस, R इज लेस देन RE। ध्यान से, आराम से, R इज लेस देन RE। फर्म कमती कमा सकता है एज कंपेयर टू शेयर होल्डर्स को जो चाहिए।
डिविडेंड शुड बी 100%. अगर फर्म कमती कमा सकता है तो पैसा क्यों डुबाएगा? यू ऑल रिक्वायर RE 20% रिटर्न आप लोग को चाहिए, मतलब कहीं और तुम लोग 20% कमा सकते हैं ना. अब तुम्हारा अर्निंग्स पे हम अगर 17 कमा सकते हैं, 17, तो हम क्यों बर्बाद कर रहे हैं पैसा को? मेरे को पैसा तुमको वापस दे देना चाहिए. You would not like me to earn for you 17 ना, because what do you want? 20. If R less than RE, किसका स्मेल आ रहा है? पॉजिटिव एनपीवी की नेगेटिव एनपीवी? नेगेटिव एनपीवी. ठीक है. तो अगर आप डिविडेंड कमती देते हो और प्रोजेक्ट में लगाते हो, इट्स गोइंग टू डिस्ट्रॉय शेयर होल्डर्स वेल्थ. ठीक है. तो बेस्ट डिविडेंड पॉलिसी इज व्हाट? 100%. 100% डिविडेंड. और ये सब लर्न नहीं करना पड़ता है, ये हमेशा इम्प्रॉम्प्टू आना चाहिए. मतलब इट्स नॉट डेट तुम बाद में याद रखेगा, तो हमेशा अपने आप को टाइम देगा. ठीक है. R इक्वल टू RE डजंट मैटर. डजंट मैटर. डिविडेंड दे नहीं दे, ज्यादा दे कम दे, क्या फर्क पड़ता है? तुम लोग को 20% रिटर्न चाहिए, हम भी तुम लोग के लिए 20% कमाने वाला है. तो डिविडेंड पॉलिसी रेलेवेंट और इरेलेवेंट? इरेलेवेंट. लास्ट वाला R ग्रेटर देन RE जो माइक्रोसॉफ्ट के साथ था. R ग्रेटर देन RE, कंपनी ज्यादा कमा सकता है तो डिविडेंड नहीं देना चाहिए. ठीक है. तो तुम लोग को 20 चाहिए, कंपनी के नाम 30 फॉर यू, गुड ओनली ना. ठीक है. तो उस केस में डिविडेंड शुड बी 0. डिविडेंड शुड बी 0. तो मेरे ख्याल से कंक्लूजन इतना ज्यादा लॉजिकल है. गिवन दैट इलॉजिकल अजम्पशन, गिवन दैट इलॉजिकल अजम्पशन, मतलब वो अजम्पशन ही तो गड़बड़ था कि रिटेन्ड अर्निंग इज द ओनली सोर्स ऑफ फाइनेंस. रियल लाइफ में क्या होगा देखना. R ग्रेटर देन RE, ध्यान दो, R ग्रेटर देन RE ये वाला केस है, फिर भी कंपनी डिविडेंड देगा. क्यों? क्योंकि डिविडेंड देगा और जो प्रोजेक्ट है वो भी करेगा, पैसा बोरो करके, शेयर इश्यू करके. ठीक है. तो रियल लाइफ में तो ऐसा थोड़ी होता है. बट अगर मान लिए अपने रिटेन्ड अर्निंग इज द ओनली सोर्स ऑफ फाइनेंस, तब जो अपने कंक्लूजन दिए वो तो एकदम प्रिपेयर्ड है. माने स्टूडेंट का ये बात नहीं होना चाहिए कि हम भूल जाएगा. यू शुड ऑलवेज गिव योरसेल्फ द टाइम कि अभी भी फ्रेश सोचेंगे तो ध्यान आ जाएगा. So that is Walter model. We accept the conclusion provided that assumption. Retained earning is the only source of finance. ठीक है. तो ओके. उसके बाद वॉल्टर मॉडल का ऑब्वियसली एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला के बेसिस पे सम आते हैं. ठीक है. तो लिखो प्लीज. This model is based on the following assumptions. This model is based on the following assumptions. This model is based on the following assumptions. Dash. Number 1, retained earning is the only source of finance. Retained earning is the only source of finance. Retained earning is the only source of finance. Bracket में it means that the firm cannot raise funds. It means that the firm cannot raise funds. It means that the firm cannot raise funds through debt. Firm cannot raise funds through debt or external equity. Firm cannot raise funds through debt or external equity. Through debt or external equity. Retained earning तो internal equity होता है ना. तो firm cannot raise funds through debt or external equity. Bracket close. Point number 2. The return that can be earned on new investments. The return that can be earned on new investments. The return that can be earned on new investments. Bracket में small r. The return that can be earned on new investments, bracket में small r, is constant. Is constant. Full stop. वहीं पे लिखना. Small r is also called, ये जो r है, r is also called IRR, internal rate of return, जैसे कैबेज का वर्ड है. IRR, कॉमा ROE, कॉमा ROI, एटसेट्रा. बिकॉज क्या पता ROC बोल दे, कोई भी ऐसा वर्ड जिससे पता चल रहा है क्या कमाएंगे वो R है. ठीक है ना. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3.
Required rate of return by shareholders